Okay. So, Assalamu alaikum and good afternoon. I am Research Associate Rabia Anwar at the Center for Law and Security, and cordially welcome you on today's webinar series, which is a regular feature of the center now. So, as we all are well aware of the fact that change in presidency in US has significant and direct impact on Pakistan's relationship with US. And once again, the people of America have elected Mr. Donald J. Trump as the 47th president of USA. So to discuss the future trajectory of Pakistan-US relations, we are honored to have a very prominent face of Pakistan's foreign service, former ambassador to United States, Russia, China, East Germany, and Syria, Mr. Ashraf Jahangir Qazi. He has also been appointed as Pakistan's High Commissioner to India, and we are also joined by Mr. Rahman Azhar, the Executive Director of CLAS. I thank both of you for joining us here. So, without further delays, I would like to begin the session. Sir, please enlighten us that in your views, what were the major challenges in Pakistan-US relations during the first presidency of Trump? Is your question addressed to me? Or? Yes, sir. Yes, certainly from you, yes, sir. All right. First of all, assalamu alaikum to all your listeners. And thank you for inviting me again on your well-known program. The relations between Pakistan and the United States have revolved around a few subjects. They have, as from the American point of view, the main subjects have been Afghanistan when their troops were involved. Now they're much less involved in Afghanistan. And the question of terrorism, which many Americans believe that Pakistan has somehow been responsible for, either promoting or not sufficiently giving priority to countering it. We don't always accept their actions. And the other is, of course, the safety of our nuclear weapons. And that is connected with this idea of terrorism, that if the country fails to sort of control terrorists, they might lose control of very important facilities, including your nuclear facilities, and they could fall into the wrong hands. Those have been American concerns. As far as Pakistan is concerned, our concern has been that America has tended to take Pakistan for granted. And has seen Pakistan, of course, as a much smaller, weaker country, which has few options vis-a-vis America. And this has been the attitude of America towards many countries, not just Pakistan, but including Pakistan. Unlike, say, India, which is a very large country, and America recognizes it has the capacity to sort of say no to America more often than countries like Pakistan may. Right. Right. Hello, I can't hear you. Yes. Ambassador साहब इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि now the challenges have been there. कितना फर्क पड़ेगा अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, और एक ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है वो एक लो इंटेंसिटी एंगेजमेंट मॉडल के ऊपर है. So do you see a shift from this paradigm, or do you see this continuing, let's say, for next 3 to 4 years? ये कम से कम 3 to 4 years के लिए रहेगा. और मैं ट्रम्प या रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से. Both of them have a similar attitude. उनका स्टाइल मुख्तलिफ है. ट्रम्प की तो अपनी एक पर्सनालिटी है, which is an odd personality in some respects, very egotistical, very aggressive. और ये बाकी जो डेमोक्रेट्स हैं ये ज़्यादा sophisticated हैं, ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, लेकिन जो सब्सटेंस है पॉलिसी की वो तकरीबन वही है टुवर्ड्स पाकिस्तान. जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान को वो देखते हैं कि एक किसी हद तक मजबूर कंट्री है, वो अमेरिका जो चाहे वो करना ही पड़ता है, और हमारे रूलिंग एलीट्स को भी वो समझते हैं कि काफ़ी हद तक वो कंट्रोल भी कर लेते हैं उनको. तो इसलिए उनके
तकाजे होते हैं कि आप ये करें, आप वो करें, नहीं तो आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, जिस तरह आप जानते हैं माजी में अच्छा। सैंक्शंस हम पे रहे हैं वगैरह। हाँ, जी जी। तो राइट। आई डोंट सी मच डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज इन कंटेंट बट इन स्टाइल, यस। ओके, बट इसमें एक चीज जरा बताइएगा कि हाउ डू यू सी कि ये जो इस वक्त हमारा जो रिलेशनशिप है जो बहुत हद तक सिक्योरिटी सेंट्रिक है और जिसमें अभी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान का जो इशू है वो नहीं है, ट्रम्प इज ऑलरेडी अगेंस्ट वॉर्स, वो कहने के मैं बाकी जंगे भी जो है वो भी जो है वो बंद करवाऊंगा। सो सिक्योरिटी सेंट्रिक जो रिलेशनशिप है इसके अंदर आप कोई जो है वो देख रहे हैं कोई ऐसा incentive for both Pakistan and the US to enhance this cooperation or relationship जो अभी as of now exist करती है? अमेरिका का जो है इन आर एरिया, ये यूरेशिया का हो या साउथ एशिया का हो, मिडल ईस्ट का हो, ये सारा जो खिता है बहुत बड़ा खिता है। their major concern in the area occupied by Pakistan is the containment of China. That is the major. बाकी यूरोप में तो वो रशिया के साथ है ओवर यूक्रेन और इस किस्म के और भी हैं, लेकिन जहां तक यूरेशिया का सवाल है या साउथ एशिया का सवाल है, उनका जो मेन वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और पाकिस्तान को वो देखते हैं कि पाकिस्तान इज अ वेरी क्लोज एलाई और वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग विद चाइना। तो उनकी काफी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता दूर करें चीन से एंड डी एम्फसाइज CPEC और उनकी ये कोशिश है। Now so far we have managed to rebuff these attempts of the United States to try and bring about a certain distance between Pakistan and China, because Pakistan is very, very important for China. And of course, China is even more important for Pakistan because it gives us an alternative to America. It gives us an alternative to the American strategy of global hegemony, because BRICS is not based on global hegemony. It's based on economic cooperation and sharing of prosperity, which is much more congenial to Pakistan. लेकिन अमेरिका इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट दैट वो समझते हैं कि हमारे जो अशराफिये हैं वो ज्यादातर वो वेस्ट की तरफ माइल हैं फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, लिहाजा उनका इन्फ्लुएंस उन पर पड़ सकता है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को चीन से दूर करने की कोशिश में है। और आप जानते हैं काफी कुछ हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स है पाकिस्तान में where they can put pressure on and तो ये उनकी कोशिश रही है। आप जानते हैं पिछले सालों में ये एलचियां भी यहाँ भेजते रहे कि पाकिस्तान से ये कहें कि आप CPEC में क्या कर रहे हैं, आप डेट में फंस जाएंगे जिस तरह श्रीलंका फंसा, आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपके साथ फिर वो इंडिया तो अपनी जगह उसकी अहमियत है लेकिन आपका भी हम ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप चीन के नजदीक हो जाएंगे तो फिर हमारा वो भी राब्ता वो आपके साथ नहीं रहेगा। और हमारे जो अशराफी हैं आप जानते हैं, I shouldn't say too much about it, लेकिन ये है कि वो ज्यादातर माइल बा अमेरिका है या माइल बा मगरब है। हमारे अवाम जो है, अवाम खूब जानती है कि पाकिस्तान का जो मुखलिस तरीन दोस्त है और वो चीन है, और वो और चीन भी ये जानता है कि the biggest asset of China in Pakistan is not any individual political leader or not any political party, it is the people of Pakistan who recognize China as to be their best. एम्बेसडर साहब, इसमें जो चाइना के साथ एक एक्सपेक्टेशन है इस वक्त, एक इम्प्रेशन ये है कि चाइना के साथ अमेरिकन जो एक राइवलरी या उसको रिफ्ट कह लें, दिस विल नॉट जस्ट कंटिन्यू, रादर इट वुड इंक्रीज। उसमें पाकिस्तान के लिए जो है वो नाउ पाकिस्तान विल बी फेसिंग अ चॉइस ऑन हाउ टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप विद यूएस ऑन वन हैंड एंड चाइना ऑन द अदर हैंड। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स एंड आवर फॉरेन पॉलिसी? अब इसमें मैंने पहले भी ये अर्ज किया है इन अदर प्रोग्राम, शायद आपके प्रोग्राम पे भी, कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स में है, ये समझना कि आप बैलेंस रख सकेंगे बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका ने तो चीन को डिक्लेयर किया एज देयर नंबर 1 एनिमी। So your best friend, your most strategically trusted friend is considered by America to be its number 1 friend. और वो जानते हैं कि they have leverage over your rulers and your elites। और उनकी सारी ये कोशिश है कि आप अपने best friend से, अपने
मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर से दूर हो जाएं, तो बैलेंस रखना ही नामुमकिन है पाकिस्तान के लिए। यू आर गोइंग टू राइट। हैव टू मेक अ चॉइस। नाउ इट डजंट मीन हम्म। कि अमेरिका के साथ अगर आपका चॉइस तो नेचुरली बहुत जाहिर है कि क्या होना हम्म। चाहिए, चीन के हक में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे या अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जरूर आपको करना होगा, राइट। लेकिन बैलेंस हम्म। आप नहीं रख सकेंगे। क्योंकि वाई? बिकॉज अमेरिका का तो ये एक क्या है, फरमान है या डिमांड है कि आप चॉइस हम्म। करें हमारे हक में, हमारे हक अच्छा। में। तो हम कैसे चीन के खिलाफ? तो हमने तो अब तक तो रेजिस्ट किया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली हमें फेलिंग स्टेट भी समझते हैं, हम्म। और फेलिंग स्टेट के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी तकरीबन होती नहीं है, ना होने के बराबर होती है। तो वो ये समझते हैं कि इसमें वो कामयाब होंगे टू टेक पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना। इस गलत अच्छा। फहमी को हमें समझना चाहिए, और वी हम्म। शुड मेक इट क्वाइट क्लियर टू अमेरिका, हम जरूर आपके दोस्त बनना चाहते हैं। राइट। आपने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन डोंट फोर्स अस टू मेक अ चॉइस बिटवीन चाइना एंड योरसेल्फ, बिकॉज आवर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड इज चाइना। ये वाज़े राइट। अल्फाज, ये वैसे हम कहते भी रहे हैं उनसे तकरीबन, लेकिन वो समझते हम्म। हैं कि ये तो कहने की बात है आपके लिए, क्योंकि राइट। आप कमजोर हैं, आप इस पे अमल नहीं कर सके पाएंगे। हम्म। ठीक है। राबिया, यू हैव अ क्वेश्चन, गो अहेड। मैं कुछ और भी चीजें पूछनी है एम्बेसडर साहब से, लेकिन आई कम बैक टू दैट। जी। जी सर। अम्बेसडर साहब, जैसे कि पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप हमेशा यूजुअली सिक्योरिटी सेंट्रिक रहा है, तो सर जी आप इसको क्या फोर्सी करते हैं कि क्या पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप इन कमिंग फ्यूचर और कुछ और डायनामिक्स होंगे इस रिलेशनशिप के, या मतलब कोई और पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन होंगे जिसपे पाकिस्तान और यूएस जो है वो कोऑपरेट कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, अदर देन सिक्योरिटी टर्म्स? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्यूचर को देखते हुए हमारे जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, और पाकिस्तानी हम्म। अवाम के क्या फीलिंग्स है इस पे। तो इसके ऊपर तो ये वो हमेशा सवाल पूछते हैं कि भाई आप अमेरिका की तारीफ करते हैं और उनको दोस्त समझते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं तमाम आलम इस्लाम के साथ, वो क्या कर रहे हैं? लेकिन बतौर खास इन गजा, इन लेबनान और ईरान के खिलाफ, जो पाकिस्तान की बहुत करीबी दोस्त हैं, और तो वो एक पॉइंट है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि चीन के साथ ट्रंप के तहत, और वैसे भी अमेरिका के जो अशराफिया हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो तो आप जानते हैं कि ये जो ट्रंप की कैबिनेट है उसमें ज्यादातर सुपर हॉक्स आए हुए हैं, एंटी जी। चाइना सुपर हॉक्स आए हुए हैं। तो जो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जैसे खराब से खराब तर होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा वो अमेरिका का दबाव आएगा पाकिस्तान पे कि भाई आप फैसला करें और हमारे हक में फैसला करें, नहीं तो हमारी और हम्म। आपकी दोस्ती नहीं हो सकेगी। और फिर आप वो सैंक्शंस वगैरह जो हमारी तरफ आएंगे वो आप सह भी नहीं सकेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि security related है, and the security problems are going to become more and more complicated, and Pakistan is going to be faced with a choice of with the need to make a definite choice. अच्छा। if our first preference will be कि बैलेंस जहां तक मुमकिन है रखने की कोशिश हम्म। करें, लेकिन ये हमें जानना होगा कि अमेरिका बैलेंस के हक में नहीं है। अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एक्सक्लूसिव ग्लोबल हेजेमनी। अच्छा। वो चीन को अपने शरीक नहीं समझते हैं। वो चीन को भी मातहत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रूस का तो वो समझते हैं कि हम कर पाएंगे, क्योंकि रूस से का अच्छा। जो इकोनॉमी है वो कुछ कमजोर है, लेकिन चीन की इकोनॉमी कमजोर नहीं है, और चीन के ऑप्शंस हैं। और उनका जो सारा इन्हिसार है, या जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, एलीट है, उन पे है कि भाई आपके सारे इंटरेस्ट जो हैं आपके, आप जानते हैं कि आपके एसेट्स कहाँ होते हैं। आप जब हम्म। रिटायर हो जाते हैं, या तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और बाहर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? चीन जाते हैं आप, या हम्म। अमेरिका आते हैं, यूरोप आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, फ्रांस आते हैं। तो आप इसका ख्याल रखें, नहीं तो आपके जितने एसेट्स हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर दबाव भी आ अच्छा। सकता है। तो वो ठीक है। समझते और हैं। जी जी। राइट। और एम्बेसडर साहब, इसी से रिलेटेड टू दिस इज के अमेरिकन वर्ल्ड व्यू जो है दैट इन्फ्लुएंसेस बेसिकली अमेरिका की जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है। जिस तरह डेमोक्रेट्स के दौर में हमने देखा ह्यूमन राइट्स पे वो हाँ जरा ज्यादा फोकस रखते हैं,
कुछ उनकी प्रायोरिटी एरियाज हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो जी, रिपब्लिकन स्टाइल से में भी फर्क है। हटकर जो हाँ, है हाँ। जी रिपब्लिकन से भी हटकर उनकी एक जी, जो है वो उनका एजेंडा या उनकी जी, पर्सनालिटी है। तो अमेरिकन वर्ल्ड व्यू जी। जो है वो कितना आपके ख्याल में जो है वो बदल जाएगा फ्रॉम करंट एडमिनिस्ट्रेशन टू द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेशली ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जैसा यूक्रेन है या गाजा है, कितना फर्क पड़ने वाला है? नहीं नहीं, यूक्रेन, अब वो गजा जो है वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। स्टाइल का जो फर्क है अच्छा। वो अपनी जगह, लेकिन ये दोनों बिल्कुल इसराइल नवाज पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी। स्टाइल में जिस तरह मैंने अर्ज किया वो फर्क है, कंटेंट वही है। as far as Ukraine is concerned, ट्रंप का दावा है कि मैं डील मेकर हूं, वॉर मंगर नहीं हूं, और वो पुतिन को काफी हद तक पसंद भी करते हैं। और उन्होंने कहा भी है अच्छा। कि पुतिन के ऊपर ये जो लड़ाई है यूक्रेन में, ये उस पर ठौंसा किया है, उसको मजबूर किया गया, उसके लिए ट्रैप ले किया गया। तो वो समझते हैं कि मैं पीस बना लूंगा, और अमेरिका के बगैर यूरोप कैनॉट फाइट Russia in Ukraine, and NATO cannot stop Russia from achieving its objectives in Ukraine without America's support. और आप जानते हैं कि ट्रंप इतना नेटो का वो हामी इतना ज्यादा नहीं है। जी। तो वो समझते हैं कि ये बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं वो अपने ड्यूज पे नहीं करते हैं, वो अमेरिका के ऊपर उनका ज्यादा फ्री राइड वो चाहते हैं। और अमेरिका ने कहा अगर ये बात है तो हम खुद निकल जाएंगे नेटो से। तो आप जानते हैं, तो वो एक किस्म का दबाव है उन पे। तो as राइट। far as that is concerned, as far as Israel, जिस मैंने अर्ज किया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। as far as पाकिस्तान अच्छा। is concerned, ठीक है, डेमोक्रेट्स के तरफ से वो ह्यूमन राइट्स की बातचीत ज्यादा होती है, लेकिन राइट। इन प्रैक्टिस दे लुक एट देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जस्ट लाइक दिस रिपब्लिकन स्टाइल। और है तो अच्छा। वो है, तो ह्यूमन राइट्स की बात होती रहेगी। ट्रंप इज लेस इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स, लेकिन डेमोक्रेट्स अपने आप को बताते हैं कि वी बिलोंग टू द अमेरिकन लेफ्ट, वी आर प्रोग्रेसिव, we are the inheritors of the Roosevelt policy, the New Deal policy, human rights, the moral status of America. ये एक दावा है, इसकी रियलिटी कम, एक जमाने में काफी क्रेडिबल था, अब ये कम अच्छा। होता जा रहा है, जिस तरह आप जानते हैं कि अमेरिकी की पॉलिसी जी। ये है। तो we have राइट। to be prepared for telling America, जिस तरह मैंने अर्ज किया, we need good relations with you, we are grateful for all the assistance you give us, we will always listen to you, but never at the expense of our relations with China. Never, कभी भी, क्योंकि चीन पाकिस्तान की तमाम तर स्ट्रेटेजिक डिफीट हो जाएगा अगर चीन हमसे रूठ जाता है। राइट। राबिया। जी सर, I have a question. सर, जैसे कि यूएस हमेशा से एम्फसाइज करता है ऑन हैविंग बॉस्टरिंग टाइज विद इंडिया, राइट? और वो उसको एज अ काउंटर बैलेंस समझता है टू चाइना इन इंडो पैसिफिक। एंड सर, फॉर दैट रीजन अभी जैसे कि अभी जब ट्रम्प की वो इलेक्ट हुए, तो ही हैज आल्सो stated India as an economic abuser while he has also praised Modi, right? So sir, do you think कि यूएस को इंडिया के काउंटर वेट में भी किसी को एक एंटिटी बनाना चाहिए इन दिस रीजन, साउथ एशिया स्पेसिफिकली, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो एक ट्रायंगल बना हुआ है चाइना, यूएस और इंडिया का, उसमें आप पाकिस्तान का क्या रोल फोर्सी करते हैं? अब जैसे मैंने अर्ज किया जी, India is a large country and a generally independent country is able to follow an independent policy. तो अमेरिका को ये गिला रहेगा कि भाई आप वो रूस नवाज हैं, और आपने वो तेल लिया, वो ईरान को वेपन्स और के जरिए आपने फराहम किया, और तेल आपने लिया है रूस का वगैरह थ्रू ईरान एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। वो बायलैटरल रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। अमेरिका जो है विल ऑलवेज बी फार मोर प्रो इंडिया देन इट इज पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान से बरमला कहता भी है कि आप इसका ख्याल ना रखें कि हम बैलेंस रखेंगे, आपके साथ इंडिया और आपके दरमियान हम बैलेंस रखेंगे। नहीं, बैलेंस का सवाल ही नहीं है, आपको वो करना होगा जिसका हम तकाजा करेंगे।
और आप ज्यादा मजबूर कंट्री हैं, इंडिया मजबूर कंट्री नहीं है। तो लिहाजा ये आप रिकग्नाइज करें कि हमारी जो अलायंस है इंडिया के साथ है अगेंस्ट चाइना, जो हमारे लिए नंबर 1 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। तो आपके साथ ताल्लुकात जितने भी अच्छे होंगे वो इतने इंडिया के बराबर नहीं होंगे। वो वाज़ेह अंदाज में ये कन्वे करते हैं, चाहे आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वो ये कहते हैं कि भाई बायलैटरल लेवल पे हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप चीन से जरा दूरियत इख्तियार करें और भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। वो ये नहीं कहते हमसे कि वो इंडिया के मुकाबले में आपको बराबर समझेंगे या वो बैलेंस रखेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो बिल्कुल नहीं कहते हैं वो। और इन दैट वे दे आर मच मोर ऑनेस्ट विद अस एंड ऑल, यू सी। सो हम जो हैं जो समझते हैं कि आप कि चीन और अमेरिका, देखें वो अमेरिका को एक लफ्ज है फ्रेनेमी, कि आधा दोस्त आधा दुश्मन, फ्रेनेमी। तो अमेरिका ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में कि तुम तो दोस्त हो लेकिन साथ साथ तुम दुश्मनी भी करते हो हमारे साथ। लेकिन ये ज्यादा लागू होता है अमेरिका पे, ये जो फ्रेज है ज्यादा लागू होता है कि पाकिस्तानियों के नजरों में, पाकिस्तान की नजर में अमेरिका असली फ्रेनेमी है पाकिस्तान का, लेकिन चीन असली दोस्त है पाकिस्तान का, मुखलिस तरीन दोस्त है। और and they have given us, look, I mean, more aid than all the other countries of the world put together over the last decade and a half. तो $62 billion. और अगर आप ज्यादा नजदीक हो जाएंगे उनके साथ थ्रू CPEC and BRICS वगैरह वगैरह, तो उनका ये 62 billion can increase several fold. तो आप several fold, and Pakistan can then achieve its political and economic and socio-economic goals through a much closer relationship with China. उसके साथ साथ आप रखने की कोशिश करें अपनी relationship with America. अगर अमेरिका आपसे नाराज होता है तो आपकी जो दोस्ती होगी, आपके relationship with China है, is enough to protect you, provided you can provide good governance to your own people. Thank you very much, sir. With this, I would like to conclude today's session, and it has been a very, very useful discussion today, sir. We have learned a lot from you, and we are delighted, and we would like to